Hello, Namaskar. Today we are going to learn our second lecture in chapter number 2 for the standard 8 in foundation. Right? Whatever we have discussed in our lecture number 1 is about the force. Then after effect of force. Then after we have studied the types of force. Then after Newton's first law and Newton's second law. In between we have also seen what is inertia and what is momentum. Right? So these all are the theory topics that we have already learned in our lecture number 1. In today's lecture, we are going to solve some application that is related with the first lecture's theory. Before going to the application, I will remind you some of the formulas that you have in your lecture number 1. See, the first thing that we have learned is about force. What is force? Force means nothing but the mass into acceleration. And how it comes? It comes from Newton's second law. What is Newton's second law? The change of momentum per unit time rate. See, the rate of change of momentum is known as force. The first thing that we have seen is about force. Force means nothing. F is equal to what? Delta P upon delta T. But what is that P? Here P is equal to momentum. And what is momentum? Momentum means mass into velocity. Hello. Delta P means what? M, final momentum minus initial momentum upon delta T. M can be common out, so it is V2 minus V1 upon delta T. So यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि the change of velocity per unit time is known as acceleration, or you can say that the rate of change of velocity is known as acceleration. So force is what? Force is equal to mass into acceleration. So this is the thing that we have get from Newton's second law. So आपके पास कौन कौन से इक्वेशन है? आपके पास ये वाला इक्वेशन भी है, ये वाला इक्वेशन भी है, ये वाला इक्वेशन भी है, ये वाला इक्वेशन भी है. कहीं पे भी आपको जैसी भी जरूरत पड़ेगी आप इसमें से किसी भी फॉर्मूला का यूज आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं. फोर्स, तो फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है. कांस्टेंट और वेरिएबल मींस व्हाट? सी, फोर्स, either force is constant or force is variable. Constant मतलब क्या? See, if I am saying that F is equal to 5 Newton, if force exerts on a body is something like 5 Newton, means what? अभी मैं देख रहा हूं तो यहां पे फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है. कल जाके मेरे बच्चे देखेंगे तो उसके लिए भी ये फोर्स 5 न्यूटन ही है. परसों जाके उसके बच्चे देखेंगे तो यहां पे भी फोर्स 5 न्यूटन ही है. तो कितना भी टाइम क्यों चला जाए, फोर्स तो ऑलवेज 5 न्यूटन पे ही है. सो अगर आपके डेटा में आपको ये बोला गया है कि फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है, मतलब कि आपका फोर्स कांस्टेंट है. वेरिएबल मतलब क्या? सपोज F is given as 5t, where t is in second. So in first second force is 5 Newton, because 5 in place of t you have to put 1 second. So in first second force is 5 Newton. In second second force is 10 Newton. In third second force is 15 Newton. Every second force changes. Means this is not the constant force. This is constant force. Sometimes constant force is also denoted like 3i caret plus 4j caret. See, there is I caret and j caret, but it doesn't mean that this is the variable force. Why? Because if you get the magnitude of that force, it will be like 3 square plus 4 square, coefficient of I caret square plus coefficient of j caret square. So it is like 9 plus 16, it is 25, and square root of 25 is 5. So this is also a constant force.
So these are the ways to denote that force is constant or variable. Why I am saying that force is constant? Because if force is constant, see, if this value is constant, mass is always constant. Hello? Suppose if you have any object, means its mass is fixed, means mass is constant. If mass is constant, force is constant, means what? Means acceleration will be constant. Acceleration will be constant. See, force is constant, mass is constant, so acceleration is what? Acceleration is force upon mass. If two things are constant, means the answer is also constant. So acceleration will be constant. If acceleration is constant, means what? Means you can apply any of this formula. There are mainly three formula for constant acceleration, right? First one is V is equal to V0 plus AT. Second one is D is equal to V0 T plus 1/2 AT square. And third one is V square minus V0 square is equal to 2AD. So these are the three formulas for constant acceleration type of motion. If in your data they are saying that the force is constant, means you have to understand that acceleration is constant. And if acceleration is constant, means you can apply any of this formula if it is required, right? So these are the basic things to understand for solving the problems. Now we are going to solve the problems. You just have to think that what is there in your data. Try to carry out the given information, and then after, by using that information, you have to select such kind of formula so that your answer would come, right? So see, this is the first question. लेक्चर अटेम्प्ट करते वक्त सिर्फ आपके पास मोबाइल या तो लैपटॉप हो ये जरूरी नहीं है, आपके पास ऑलवेज एक नोट पेन तो रहना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो सिखा रहा हूं वो साथ साथ में आप मेरे से पहले करते रहे. आपके पास डेटा दिख रहा है तो फिर आप मेरे कैलकुलेशन करने के टाइम, मैं जब कैलकुलेशन करूं फिर आप कैलकुलेशन करें, उतना टाइम मत लीजिए. आपके सामने जब डेटा दिखाई दे रहा है आप अपने हिसाब से करते जाओ. अगर आंसर मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर देखो पॉज करके वीडियो कि मैंने कौन सा मेथड यूज किया है, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, मैंने क्यों ये पहला स्टेप किया, आपने क्यों पहला स्टेप वो नहीं किया. ये सारी चीजें आप लेक्चर अटेम्प्ट करते वक्त करते जाएंगे, तब आपका एबिलिटी पावर बढ़ेगा और तब जाके आपको 11th और 12th साइंस में ज्यादा फायदा होगा. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू collect the data. A force produces an acceleration of 2 meter per second square. See, acceleration is constant, 2 meter per second square. So what is there in your given data? Acceleration is given, it is 2 meter per second square. What is there? See, body A पे 2 meter per second square का acceleration produce हो रहा है, body B पे 5 meter per second square का acceleration produce हो रहा है. A force produces an acceleration of this. तो situation कौन सा था मैं आपको दिखा रहा हूं. आपके पास एक ऑब्जेक्ट है A, आपके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है B. A का मास कितना है नहीं पता है, मास ऑफ A we do not know, mass of B we do not know, but yes, force acting is suppose F. So this much force is also exert on this body. So this is again F. By applying F force, A body will get 2 meter per second square acceleration. So acceleration of A is what? 2 meter per second square. And acceleration of B is what? Acceleration of B is given 5 meter per second square. Hello. So forces are same for both the blocks. So we can say that F is equal to ma, and according to
according to F is equal to ma, we can say that mass of A and acceleration of A is equal to F. Here we can also say that force is equal to mass of B block and acceleration of B block. Hello? If forces are same, means you can say that mass into acceleration of A, यहाँ पे स्मॉल ए आएगा, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। पेन चलना बंद हो गया है, देखते हैं। हेलो, अकॉर्डिंग टू एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू mass into acceleration, F is equal to mass into acceleration. If forces are same, so you can say that mass into acceleration of A is equal to mass into acceleration of B. What they are saying? They are saying that find the ratio of mass A to the mass of B. Means you have to calculate the ratio of mass A and mass B. So it will be like acceleration of B upon acceleration of A. Acceleration B is 5, acceleration A is 2, so it will be like 2.5 meter per second square. Sorry, a meter per second square will not be there. Why? Because this is 5 meter per second square, this is 2 meter per second square, so units will be cancelled out. So ultimately this is only 2.5. Answer is 2.5 because this is the ratio of masses, so there is no unit for that. ऐसे करके आप ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सी, a force of 1 Newton acts on a body of mass 10 kilogram. As a result, body covers 100 centimeter in 4 seconds. Moving along a straight line, find the initial velocity. This time they are talking about finding out the initial velocity, means you have to calculate what is initial velocity. फोर्स इज 1 न्यूटन. सी, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, मतलब आप अभी देख रहे हो तो फोर्स 1 न्यूटन का है, कल जाके आपके बच्चे देखेंगे तो भी ये फोर्स 1 न्यूटन का ही लगेगा, परसों जाके उसके भी बच्चे देखेंगे तो भी ये फोर्स 1 न्यूटन का ही लगेगा, मतलब कि आपका फोर्स कांस्टेंट है. इफ फोर्स इज कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट. मास दिया गया है कि नहीं दिया गया है? मास भी दिया गया है 10 किलोग्राम. Mass is 10 kilogram. See, force is given, mass is given. So from this information you can calculate what is acceleration. Acceleration is force upon mass. क्योंकि F is equal to ma होता है तो A क्या होगा? Force upon mass. Force क्या है? 1 न्यूटन. Mass क्या है? 10 किलोग्राम. So it is 0.1 meter per second square. This is the acceleration of your object. Acceleration is constant and they are saying that body covers 100 centimeter in 4 centimeter in 4 seconds. Sorry, body covers 100 centimeter in 4 seconds. If acceleration is constant, means there are 3 formula. One is V is equal to V0 plus AT. Another one is D is equal to V0t plus half AT square, and the third one is 1 half AT square, and third one is V square minus V0 square is equal to 2AD. See, यहाँ पे डिस्टेंस की बात बोली गई है, टाइम की बात बोली गई है. डिस्टेंस एंड टाइम आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस नहीं आ रहा है. डिस्टेंस यहाँ पे भी है, डिस्टेंस यहाँ पे भी है, लेकिन ये वाले फॉर्मूला में किधर भी टाइम नहीं है, तो ये नहीं चलेगा. यहाँ पे डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो आप ये बोल सकते हैं कि D इज इक्वल टू V0t प्लस 1 हाफ t स्क्वेयर. What is the distance? Distance is 100 centimeter, so you can say that 0.1 meter. V0 तो आपको फाइंड आउट करना है, 4 सेकेंड लगे. 1 हाफ एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया 0.1, टाइम है 4 सेकेंड का स्क्वायर, सो इट इज 4V0 प्लस 1 हाफ इंटू 0.1 इंटू 16, 2 8 16,
So it is 4v0 plus 0.8, it is 0.1. हेलो, आप यहां से कैसे भी करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर है तो वो क्या होगा, 0.1 मीटर थोड़ी ना होगा, 100 सेंटीमीटर है मीन्स कि वो तो 1 मीटर होना चाहिए ना। यहाँ पे आपने गलती कर, आपने नहीं पर मैंने गलती कर दी। अगर 100 सेंटीमीटर बोला गया तो 0.1 मीटर थोड़ी होगा, तब तो 1 मीटर होगा ना। तो यहाँ पे 1 मीटर आपको पुट करना है। 1 मीटर में से 0.8 मीटर चले जाएंगे तो 0.2 मीटर बचेगा। 0.2 इज इक्वल टू 4v0 और आपको v0 निकालना है तो 0.2 डिवाइड बाय 4 करना होगा। हेलो, 0.2 डिवाइड बाय 4 मीन्स 2/10, 2/10 मीन्स 1/40, 2/40, 2/40 means what, 1/20, 1/20 means 0.05 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये बहुत छोटा है, लग रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिकॉज 0.05 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हेलो, सो by applying this kind of simplification you can find your answer. The initial velocity of your object is 5 centimeter per second. See, हर है कि सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, हमको तो मालूम नहीं पड़ता है फॉर्मूला यूज। तो आप देखना, मेरे पास 3 फॉर्मूला ही थे ना अवेलेबल, मैं ये अप्लाई नहीं कर सकता, मैं ये अप्लाई नहीं कर सकता। अगर इन दोनों से आंसर नहीं आ रहा तो इससे तो आना ही है। अगर किसी ने पहले ये पुट कर दिया तो वो अपने सिंप्लीफिकेशन में आंसर तक नहीं पहुंच पाएगा, और आंसर तक नहीं पहुंच पाएगा मतलब उसको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तो ऐसे करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, नहीं पसंद है, नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले ये करो फिर ये करो, भले आपको टाइम लगेगा आंसर आने तक, लेकिन आपका आंसर आएगा डेफिनेटली, ठीक है। जो भी मेन वर्ड्स है डेटा में उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देना। यहां पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है मतलब कि फोर्स कांस्टेंट है, ये चीज स्ट्राइक होनी चाहिए हर बार। सी क्वेश्चन लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। देखो आप, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विथ स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड हिट्स अ थिक मडी वॉल एंड पेनिट्रेट्स इनटू इट। आपके पास एक वॉल दी गई है, सपोज कि ये कोई मडी वॉल है, बुलेट का मास दिया है 20 ग्राम और उसकी स्पीड दी गई है 120 मीटर पर सेकेंड। सपोज कि यहाँ पे कोई आपके पास गन है, कौन सी गन रखेंगे हम, कौन सी रखेंगे, कार 98 सानी मनीना बेहोने पबजी वाળાઓ AKM રાખવીશ, કઈ M416 બધા જે બોલ્યા છે બધાને વાલીને મળવાનું છે આપણે। सपोज यहाँ पे आपके पास कोई बुलेट है, बुलेट मतलब वो धक 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 वाला बुलेट नहीं, हाँ भाई, ये गन में से जो बुलेट निकल रही है वो बुलेट है, उसकी स्पीड दी गई है, वो बुलेट यहाँ पे जाने वाली है, उसका मास दिया है 20 ग्राम, उसकी स्पीड दी गई है 120 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट यहां से पेनिट्रेट करके अंदर जाके रेस्ट पे आ जाती है, बुलेट यहां से यहां तक आ जाती है, मतलब कि बुलेट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, कितना कवर किया है मालूम नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक आने के लिए जो टाइम है वो टाइम दे दिया है कि इट टेक्स 0.03 सेकेंड टू स्टॉप। वो स्टॉप हो चुकी है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, वो 0 मीटर पर सेकेंड है। यहां से यहां तक का जो टाइम है वो 0.03 सेकेंड है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए? पहला क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इन द वॉल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सेलरेशन
of bullet in the wall. Acceleration means what? Force upon mass. फोर्स कितना लग रहा है वो तो आपको मालूम ही नहीं है ना कि कितना फोर्स लग रहा है। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो ये वाला एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं, तो आपके पास कोई और दूसरा रास्ता है क्या? तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, आपको इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक के पहुंचने का टाइम पता है, तो और कोई दूसरा रास्ता ढूंढो जिससे आप एक्सेलरेशन तक पहुंच पाए। तो यस, दूसरा रास्ता है ना, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है? 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको मालूम नहीं है, टाइम कितना है? 0.03 सेकेंड। सो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो -120 डिवाइड बाई 0.03 मीन्स 3/100। 3/100 मीन्स 100 ऊपर चला जाएगा। सो ये -12,000 डिवाइड बाई 3, सो -4,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ योर बुलेट इन द वॉल। सी, एक्सेलरेशन का आंसर माइनस में ही आना था क्योंकि बुलेट का डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा था, मतलब बुलेट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, लेकिन वो आगे जाके स्टॉप हो गई, मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब कि फोर्स सामने की ओर लग रहा है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यस, एक्सेलरेशन तो आपको माइनस में ही आना था, और कितना आया? -4,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फर्स्ट portion is over. What is there in second? The force exerted by the wall on the bullet. Second question हमारा B पार्ट ये है, force exerted by the wall on the bullet, by the wall on the bullet. See, बुलेट यहां से आ रही है, फोर्स इधर लग रहा है सामने की ओर, तो बुलेट ये डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है और आप फोर्स सामने से लगा रहे हैं, तो ये फोर्स भी माइनस में ही आना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स लग किस पे रहा है? बुलेट पे लग रहा है। लगा कौन रहा है? वॉल लगा रही है। तो मास की जगह पे आपको क्या लेना है? बुलेट का कितना मास है? बुलेट का मास है 20 ग्राम, सो 0.02 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना है? -4,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट इज लाइक 2/100, 0 0 कैंसल आउट, 40 into 2, -80 kilogram meter per second square. So it is -80 Newton, because kilogram meter per second square is Newton. तो हमारा फोर्स कितना लगेगा? -80 Newton. B part is over. C, the force exerted by the bullet on the wall. B में उल्टा पूछा है, C में उल्टा पूछा है। बी में पूछा है कि बुलेट पे वॉल कितना फोर्स लगाता है, सी में ये पूछा है कि वॉल पे बुलेट कितना फोर्स लगा रही है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर कोई दो चीज टकरा रही है तो ये चीज इस पे जितना फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स ये वाली चीज इस पे भी लगा रही होगी। ठीक है, तो फोर्स तो दोनों का सेम ही आना है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होनी है। तो अगर वॉल ने बुलेट पे -80 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बुलेट ने वॉल पे +80 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। You can say that force exerted by bullet on wall, force on wall by bullet कितना रहेगा?
प्लस 80 न्यूटन। वॉल पे लग रहा है, बुलेट लगा रही है, तो प्लस 80 न्यूटन इज योर आंसर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट इन द वॉल, आपको ये डिस्टेंस कितना है वो भी फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, वी स्क्वेयर माइनस वी जीरो स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AD का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप d इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर का भी उपयोग कर सकते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, बुलेट आखिर में स्टॉप हो रही है, तो v की जगह पे जीरो स्क्वेयर माइनस वी जीरो, इनिशियल स्पीड कितना था 120 का स्क्वायर, टू एक्सेलरेशन कितना था -4000 इंटू डी। सो यहां से आप कैलकुलेट कर लो, -12 मीन्स 144, जीरो का जीरो जीरो इज इक्वल टू -8000 डी। अगर आपको डी निकालना है तो -14400 डिवाइड बाई 8000 करना होगा, दो दो जीरो कैंसल, 144 है 80 है, 8 से आप कैलकुलेट करो, 8 1 जार 8, 6 4 64, 8 8 जार 64, 8 10 जार 80, so it is like 1.8 मीटर। हेलो, डिस्टेंस क्या आएगा, दोनों माइनस है तो डिस्टेंस क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसल, सो 1.8 मीटर इज योर आंसर। हेलो, आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास v0 है, टाइम 0.03 सेकेंड है, 1/2 है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, यहां से भी आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ पे 0.03 का स्क्वायर और वो सारी चीजें टाइम कंज्यूमिंग होगी, तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके मटेरियल में यहां से सोल्व किया है, मैं यहां से सोल्व कर रहा हूं क्योंकि ये आसान है, ये भी आसान है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो दोनों आसान है। ठीक है, देखो पहले आएगा आपके मॉड्यूल में, यहाँ पे -4000 कर देना, एक्सेलरेशन माइनस में आना है, बी पार्ट -80 न्यूटन, द न्यूटन्स थर्ड लॉ, द एक्सर्टेड बाय द बुलेट ऑन द वॉल इज आल्सो 80 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और यहां से आंसर आता है 1.8 मीटर। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप ये सॉल्यूशन किधर भी लिख लेना, और जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है वो एक बार आप अपने आप से ट्राई करना सॉल्व करने की, ना कि मॉड्यूल में देख देख के सॉल्व करना। ठीक है, सी a constant retarding force of 50 newton, so force is given and it is retarding force, so -50 newton is there to a body of mass is also given 20 kilogram. If mass is given, force is given, you can also calculate the force. Acceleration is what, force upon mass, so it is -50 divided by 20, so it is -2.5 meter per second square. This is the acceleration. इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, v0 इज ऑल्सो गिवन 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, मतलब कि टाइम कितना लगेगा, किस में टाइम लगेगा, स्टॉप होने के लिए। अगर बॉडी स्टॉप हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी कौन सा रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड। सी फोर्स इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट means you can apply any of the formula of constant accelerated motion. I am using v is equal to v0 plus 80. See, मेरे को फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है और टाइम पूछा है। अगर डिस्टेंस पूछा होता मैं v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD वाला फॉर्मूला लेता, लेकिन यहाँ पे टाइम पूछा है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, ये 0 आ गया। In place of v0 15, in place of acceleration it is -2.5, in place of time तो आपको कैलकुलेट करना है, so it is 2.5 t is equal to 15, so t is equal to 15 divided by 2.5, 2.5 2 5 means it is 6 सेकेंड लगेगा। अगर आप गलती से भी यहाँ पे +50 न्यूटन ले रहे हो तो आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज हो जाएगा। रिटार्डिंग फोर्स है तो रिटार्डिंग फोर्स आपको माइनस में ही लेना है, तो आंसर आएगा 6 सेकेंड। आप ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पे किधर लिख लो, आप के अंदर
इसमें जो सॉल्यूशन दिया है वो भी ऐसा ही है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप ये करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गलती से ये लिख लिया है, ये वाला किधर भी लिख लो, ठीक है, पॉज करके। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, सी A इज इक्वल टू dv बाई dt, ये गलत दे दिया है, या गलत नहीं है पर इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन यहां से ये फॉर्मूला से फाइंड किया है कि एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट, फोर्स अपॉन मास। फोर्स है -50, मास है 20 किलोग्राम, फिर ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। When a force acts on a body of mass 100 gram, mass is given 100 gram. 100 gram means what? 0.1 kilogram. The change in its velocity is 20 centimeter per second. देखो ये वर्ड्स आप अच्छे से सुनो, क्या बोला है, चेंज इन इट्स वेलोसिटी इन 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको जो ये दिया है, ये वेलोसिटी नहीं दिया है, पर सेकेंड वेलोसिटी में कितना चेंज है वो दिया है। आप एक्सेलरेशन का डेफिनेशन सुनो, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था, पर सेकेंड, पर सेकेंड, टी का आंसर 1 ले लो, पर सेकेंड वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, पर सेकेंड वेलोसिटी का चेंज कितना है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। तो यहां पे आप देखो एक्सेलरेशन का क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन मींस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, तो पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है। सो आपका आंसर है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। The way to give acceleration is superb. This time they are not directly saying that acceleration is this much. This time they are carry out the definition to give you the acceleration. They are saying that change in its velocity per second is this, means this is the acceleration. So this is in centimeter, so you can convert it in meter, like 0.2 meter per second square. Mass is given, acceleration is given, so they are talking about the force. Definitely they are talking about the force. See, the magnitude of the force is what, because with the help of mass and acceleration they can talk about force only. So you can say that force is equal to mass into acceleration, so it is 0.1 into 0.2 kilogram meter per second square. So answer is in Newton, and answer is 0.02 Newton. Hello, B option is correct. Okay, fine. A force acts on an object of mass 1.5 kilogram at rest for 0.5 second. After the force stops acting, the object travels a distance 5 meter in 2 seconds. Hence the magnitude of the force will be what? See, सिचुएशन समझने की कोशिश करो। अगर कोई इंसान ऐसे 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 खड़ा हुआ है तो कोई दूसरा बंदा ऐसे आएगा और उसको थोड़ा सा धक्का देगा, तो सिचुएशन क्या होगी, कुछ देर के लिए उस पर फोर्स लगेगा, फिर फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन उस फोर्स की बदौलत वो थोड़ा आगे चला जाएगा। तो अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, मैंने यहाँ आके उसको पुश किया, किसी दूसरे बंदे ने यहाँ से आके उसको पुश किया, तो क्या होगा, उसके लिए थोड़ी देर तक फोर्स लगेगा, मतलब यहां से यहां तक फोर्स लग रहा है। वो इंसान ने यहां से आके धक्का देना छोड़ दिया, लेकिन वो धक्का इतना बड़ा था कि उसकी वजह से वो फिर भी थोड़ा आगे चला जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन आप खास करके समझो कि दिया क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पे फोर्स लग रहा है, वह फोर्स थोड़ी देर तक लग रहा है, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ तब तक फोर्स लग रहा है, लेकिन यहां पे जब आ गया तब अब उसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, 0 न्यूटन, क्योंकि अभी भी यहां आने के बाद कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आपका बॉडी यहां से यहां तक जा रहा है, मतलब कि ये डिस्टेंस फिर भी कवर हो रहा है। ठीक है, कितना मास है, 1.5 किलो का ऑब्जेक्ट है,
0.5 सेकेंड तक के लिए फोर्स लगा. सो मास इज 1.5 किलोग्राम, टाइम इज 0.5 सेकेंड. टाइम इज 0.5 सेकेंड. सो यहां से यहां तक का टाइम दे दिया है 0.5 सेकेंड. अब यहां जाके कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 5 मीटर इन 2 सेकेंड. सो यहां से यहां तक 2 सेकेंड लग रहा है, और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी कितना है 5 मीटर. ठीक है. Hence the magnitude of the force will be what? आपको फोर्स कितना लगा वो मालूम करना है. तो कैसे मालूम कर सकते हैं आपकी कितना फोर्स लगा होगा? टाइम दिया है कि 0.5 सेकेंड तक के लिए ही आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स लग रहा है. तो आप एक बात समझो, अगर मेरे को फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन कहीं से तो तब जाके मैं मास इनटू एक्सेलरेशन कर पाऊंगा. ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बढ़िया है. क्यों? क्योंकि टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, और एक्सेलरेशन नहीं है. अगर एक्सेलरेशन नहीं है मतलब क्या कि वेलोसिटी में तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है. अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी आप कहां से निकाल सकते हैं? वेलोसिटी मींस व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना कवर किया 5 मीटर, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड. सो यहां से आंसर क्या आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड. ये आपकी वेलोसिटी आई v. मतलब कि यहां पे फोर्स लग रहा था, फोर्स 0.5 सेकेंड तक लगा, यहां आके फोर्स लगना बंद हो गया. जब भी फोर्स लगना बंद हो गया तब उसकी वेलोसिटी क्या थी? तब उसकी वेलोसिटी थी 2.5 मीटर पर सेकेंड. और अब जाके यहां से यहां तक का सफर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से करेगा. फिर अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां पे भी आएगा तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड. आपको जो निकालना है वो निकालना है कि फोर्स कहां से आएगा. तो देखो आपके पास ऑब्जेक्ट पहले स्टेडी था, देखो रेस्ट. अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था मतलब कि v0 आपका 0 मीटर पर सेकेंड था. आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, आपके पास टाइम है. तो अगर ये तीनों चीज है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80. v क्या होगा 2.5, v0 क्या है 0, एक्सेलरेशन मालूम नहीं है, टाइम कितना है 0.5. सो एक्सेलरेशन चाहिए तो 2.5 डिवाइड बाय 0.5 इट इज लाइक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. If acceleration is 5 meter per second square, means now you can calculate what is the value of force. Force is equal to mass into acceleration. Mass is 1.5 kilogram and acceleration is 5 meter per second square. So 1.5 into 5, 7.5 kilogram meter per second square. So 7.5 Newton is the force. See. बी ऑप्शन इज करेक्ट. कैसे मैंने इसको सॉल्व किया? तो मेरे को फोर्स चाहिए मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन चाहिए. मास तो मालूम था, जो भी कुछ बाकी था वो एक्सेलरेशन था. एक्सेलरेशन कहीं से भी मिल नहीं पा रहा था. तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि मेरे को यहां पे फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम थी. पहले मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट किया, वेलोसिटी के बाद मैंने ये वाला फॉर्मूला रखा और एक्सेलरेशन मिला. एक्सेलरेशन मिलने के बाद मैंने अपना फोर्स कैलकुलेट कर लिया. सो कहां से स्टार्ट करना है सॉल्यूशन, वो चीज ज्यादा मैटर करती है. आप हैबिट ही ऐसी डालो कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरा ध्यान लगाओ कि आपको दिया क्या गया है, आपको जाना कहां तक है, वहां तक जाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज मिल रही है, कौन कौन सी चीज नहीं मिल रही है. अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो वह कहां से लाए. ऐसे पूरा क्वेश्चन उल्टा गिनोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा फिजिक्स और मैथ्स. देखो ये वाला सॉल्यूशन
सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने पहले से ही वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कैलकुलेट कर लिया। तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे तो आप तो क्या ले, ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? अरे ऐसा करना ही पड़ता, अगर ऐसा नहीं करते तो आपको एक्सेलरेशन नहीं मिलता। ठीक है, फिर यहाँ पे उन लोगों ने मोमेंटम वाला कुछ लिया है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करके डेल्टा फिर फाइंड आउट किया। आप ये सॉल्यूशन मत करना, आप ये सॉल्यूशन ही कर लेना, ये ज्यादा इजी है समझने के लिए। ठीक है, तो सॉल्व प्रॉब्लम है कि कौन सा है ये? सॉल्व प्रॉब्लम 139 का सॉल्यूशन आप ये वाला लिख लेना, अपने मॉड्यूल के अंदर ही लिख लेना। ठीक है, ये देखो, a body having mass 20 kilogram travels 100 meter distance, its velocity decreases from 25 meter per second to 5 meter per second. Force on body is what? Force on body means what? Force is equal to mass into acceleration. In place of acceleration you can say that v2 minus v1 upon time. देखो आप, मास दिया है, कितना दिया है? 20 किलोग्राम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना लिया? टाइम दिया है कि नहीं दिया है? टाइम नहीं दिया है, ये वाली चीज नहीं दी है। अगर आपको कहीं से भी टाइम मिलेगा तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन उन लोगों ने बोला है कि 100 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, मतलब कि यहां से ऑब्जेक्ट यहां तक जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम है 5 मीटर पर सेकेंड, ये डिस्टेंस आपको मालूम है 100 मीटर। तो आप यहां से ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। वी मालूम है, वी जीरो मालूम है, डी मालूम है, तब आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वंस यू गेट द एक्सेलरेशन, फोर्स मीन्स व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 20 किलोग्राम का मास है, और एक्सेलरेशन यहां से जो भी आता है वो पुट कर दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। हेलो, ये भी कर सकता था, लेकिन यहां पे टाइम नहीं मालूम था, और टाइम कहीं से मालूम हो भी नहीं सकता था। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो आप, और यहां से आप अपने आंसर तक पहुंचो। देखो, किसी को भी मालूम नहीं होता है कि ये स्टार्ट करना है कि ये स्टार्ट करना है। आप अपने प्रैक्टिस से ही पहुंच सकते हैं कि ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, क्योंकि जितना क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते जाएंगे उतना आपको आइडिया ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा। Two objects of mass 10 kilogram and 50 kilogram moving with same velocity. Velocity is same, then the ratio of momentum is what? मोमेंटम का रेशियो है, मतलब कि ए वाले का मोमेंटम अपॉन बी वाले का मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स क्या? ए वाले का मास और ए वाले की वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ बी मीन्स व्हाट? बी वाले का मास और बी वाले की वेलोसिटी। वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मास क्या क्या है? 10 किलोग्राम है और 50 किलोग्राम है, तो आंसर क्या आएगा? 1:5। दिस इज योर आंसर। सी, आपको जस्ट फॉर्मूला पता चलना चाहिए कि मोमेंटम मीन्स व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी। अगर ये आता है तो आप ये आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ये देखो, when 12 न्यूटन फोर्स एक्सर्टिंग ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। मतलब कि फोर्स दिया है और एक्सेलरेशन दिया है। फोर्स और एक्सेलरेशन से आप मास निकाल सकते हैं। मास मीन्स व्हाट? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स है 12 न्यूटन का, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, सो इट इज 3 किलोग्राम। हेलो, मास कितना आएगा? 3 किलोग्राम। Then how much force required to produce acceleration 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? एक ऑब्जेक्ट पे आप 12 न्यूटन फोर्स लगाते हो तब एक्सेलरेशन 4 आता है। फिर उसी ऑब्जेक्ट पे मतलब क्या कि मास तो 3 किलोग्राम ही लेना है, और आप एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करना है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब आपको फोर्स कौन सा लगाना है? तो फोर्स मतलब क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 3 इंटू 10, सो 30 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। बी आंसर इज करेक्ट आंसर।
हेलो, ओके। ये कैलकुलेट करो। A force acts on a particle of mass 200 gram. The velocity of the particle changes from this to this in 2.5 सेकेंड। अब यहां पे आप कर सकते हैं वो वाली फॉर्मूला, force is equal to mass into acceleration. mass in place of acceleration you can write v2 minus v1 upon time, क्योंकि यहां पे देखो 200 ग्राम मीन्स 0.2 किलोग्राम। फाइनल वेलोसिटी कौन सा है 25 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कौन सा है 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा 2.5। सो 25 में से 15 चला जाएगा तो बचेगा 10, 10 डिवाइड बाय 2.5, सो इट इज 4 into 0.2, it is 0.8 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। हेलो, 0.8 न्यूटन। ये मत करना, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो यही कर लेना, ठीक है। यही ये वाला सॉल्यूशन ही आप CTP 147 में लिख लेना। 148, 6 Newton produces an acceleration of 2 meter per second square when it acts on a body A and 3 meter per second square when it acts on another body B. ओके, देखो आपके पास A बॉडी है, यहां पे फोर्स कितना लगा 6 न्यूटन का, और इतना फोर्स लगने की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा भी कुछ बॉडी है, यहां पे भी उतना ही फोर्स लगा है, कितना फोर्स लगा है 6 न्यूटन, सॉरी यहां पे 6 न्यूटन नहीं लगा, यहां पे 5 न्यूटन दिया है ना, नहीं 5 न्यूटन नहीं दे, देखो अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन इट एक्ट्स ऑन अ बॉडी ए एंड 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन इट एक्ट्स ऑन अनदर बॉडी। मतलब यहाँ पे भी अभी फोर्स तो 6 न्यूटन ही लग रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि ये फोर्स और ये एक्सेलरेशन से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए वाले का मास, मास मतलब फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, सो इट इज 6/2, इट इज 3 किलोग्राम। बी वाले का मास देखना है तो बी वाले का मास कहां से आ गया, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है 6 न्यूटन, बी वाले का मास चाहिए तो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन करना होगा ना, फोर्स है 6 न्यूटन, एक्सेलरेशन है 3, सो इट इज 2 किलोग्राम। तो ये ऑब्जेक्ट आपका 3 किलोग्राम का था, ये ऑब्जेक्ट आपका 2 किलोग्राम का है। अभी आप क्या कर रहे हैं, इफ द टू बॉडीज ए एंड बी टाइड टुगेदर, टायर्ड या टाइड, टाइड टुगेदर, आप उन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। अगर उन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो इसका पूरा मास क्या हो जाएगा 5 किलोग्राम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 3 + 2 5, और उस पर फोर्स कितना लगा रहा है, उस पर फोर्स भी लगा रहा है 5 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आना है, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, so it is 5/5, it is 1 meter per second square। हेलो, पहले यहां से मास फाइंड किया, फिर यहां से मास फाइंड किया, फिर दोनों मास का एडिशन किया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। सो दिस हाउ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। सी how much force is needed to produce an acceleration of 16 centimeter body of mass, मतलब कि मास दिया है 0.250 किलोग्राम, एक्सेलरेशन दिया है 0.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको पूछा गया है कि फोर्स कितना होगा, तो फोर्स कितना होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। सो ये आप अपने हिसाब से कर लेना। मास दिया, फोर्स दिया है, मास दिया है, फोर्स और मास दिया है और एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो आंसर तो पता चल ही जाएगा ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पे भी देखो 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स दिया है और मास दिया है, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है, फिर आपको पूछा है कि टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस 12 मीटर, मतलब कि डिस्टेंस 12 मीटर है, फोर्स है वह कांस्टेंट है।
अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास, मतलब कि 6 न्यूटन डिवाइड बाय 1 किलोग्राम, इट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पूछा है डिस्टेंस कितना कवर करना है, 12 मीटर। पहले इनिशियल स्पीड कौन सी थी, इनिशियल स्पीड थी उसकी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट पे था। टाइम पूछा है कि इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकता हूं ना, v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। v0 0 है तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीपल में हो 0, 1/2। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है 6। टाइम कितना है, वो टाइम तो निकालना है आपको। डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर। 12 2 are 24, 24 divided by 6, तो t square is equal to 4, so t is equal to 2 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। सॉल्यूशन लिख लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सॉल्यूशन लिखने जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर, ये सारी चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। A constant force of 12 Newton acts on a body for 4 seconds. Find the change in the linear momentum of the body. आपको न्यूटन के सेकंड लॉ से ये पता था कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होना है। पूछा ये है कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो डेल्टा पी कितना होगा, तो F इंटू डेल्टा टी जितना होगा। फोर्स लग कितना रहा है, 12 न्यूटन। कितनी सेकेंड तक लग रहा है, 4 सेकेंड तक, तो 48 न्यूटन इंटू सेकेंड। दिस इज योर आंसर। न्यूटन की जगह पे आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड करो तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर यूनिट। सो ये वाली फॉर्मूला यूज करके आप इसका भी आंसर डाल सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। दिस इज योर होमवर्क। ट्राई टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स विथ योर ओन सेल्फ। डोंट लुक एट द सॉल्यूशन इन योर मॉड्यूल। आप अभी से ऐसी हैबिट डालो कि आप सारे के सारे क्वेश्चन खुद ब खुद करते जाओ, जरूर पड़े तो ही सॉल्यूशन देखो, अदरवाइज थियरी वापस से करो, क्योंकि एक बार आपको सारे फॉर्मूला याद रहेंगे, फिर वो फॉर्मूला कब यूज करने हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट अच्छा आप कंसेप्ट करोगे तो उससे कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना है, वो सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो that's it from today's lecture. We stop here. Jai Hind, Jai Bharat, Astu. Thank you.